నమస్తే ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు జేసీఎల్ న్యూస్. అయితే నేను ఒక 8-10 కిలోమీటర్ల నుంచి ఈ అన్నని ఫాలో చేస్తున్నాను. జనరల్గా ఎవరైనా రోడ్డు మీద నడిస్తే ఆపి లిఫ్ట్ అడుగుతారు, వాటర్ అడుగుతారు, అది అడుగుతారు. అదే డౌట్ వచ్చింది. కొద్దిగా దూరం వచ్చిన తర్వాత ఇంతకు ఈయన ఎవరు, ఏం చేస్తున్నాడు, ఎక్కడ పోతున్నాడు, ఏంది కనుక్కుందామని ఆపిస్తే అన్నది చాలా పెద్ద స్టోరీ ఉంది. ఏంటంటే సుమారు 20,000 కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర, సుమారు 3.5 సంవత్సరాల సమయం, కాశ్మీర్ నుండి కన్యాకుమారి వరకు, అలాగే ఇక్కడ తూర్పున గాల్వాన్ లోయల వరకు కూడా తన పాదయాత్ర కొనసాగింది. ఇంతకు ఎవరు, ఎందుకు పాదయాత్ర చేస్తున్నాడు, వివరాలు తెలుసుకుందాం పదండి. పేట్రియట్ శివకరణ్ సింగ్గా ప్రసిద్ధి చెందిన వ్యక్తి. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఫతేపూర్ జిల్లా కరోలి గ్రామానికి చెందిన శివకరణ్ సింగ్ గత 3.5 సంవత్సరాలుగా వివిధ రాష్ట్రాలలో పాదయాత్ర చేస్తున్నాడు. కన్యాకుమారి నుండి ఉత్తరప్రదేశ్ వరకు తిరుగు ప్రయాణం వెళ్తుండగా నేడు జడ్చర్ల మార్గ మధ్యంలో మనకు కనిపించాడు. తనతో కాసేపు ముచ్చటించాం. మీరు కూడా చూసేయండి తన ఆవేదన ఏమిటో. ఆజాద్ చంద్రశేఖర్ తనకు స్ఫూర్తినిచ్చారని అంటారు. అలాగే స్వీయ ప్రేరణతో అందరికీ న్యాయం దక్కాలని లక్ష్యం పెట్టుకున్నానని అంటున్నాడు క్రాంతి కిరణ్ సింగ్. భారతమాతను పరమ దైవంగా భావించే కరణ్ సింగ్ భారతదేశాన్ని ఉన్నత సింహాసనంపై స్థాపించాలని తన ధ్యేయంగా, యువత చెడు అలవాట్ల నుండి విముక్తి చేయడం, దేశ హితంలో యువతను ముందు నిలవడమే తన లక్ష్యమని అన్నారు. త్యాగధనులైన అమరవీరుల సంస్మరణార్థం దేశ భద్రతకు స్వేచ్ఛనిస్తున్న జల వైమానిక రక్షణ కోసం, వాళ్ళ ఆరోగ్య కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నానన్నాడు. సైనికులు దేశాన్ని కాపాడుతున్న అన్ని వర్గాల ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తను ఎంతో రుణపడి ఉంటానని, అలాగే సనాతన ధర్మం కోసం, సనాతన సంస్కృతిని పునరుద్ధరించడం కోసం ప్రజలతో చర్చలు నిర్వహించడం, గ్రామీణంలో వ్యవసాయం గురించి అడిగి తెలుసుకోవడం, ధార్మిక అలాగే వృత్తి, వ్యవసాయ, పత్రికా విలేకరుల గౌరవాన్ని చాటి చెప్పడమే తన లక్ష్యమని అన్నారు. 2022 నవంబర్ 30న శ్రీ నీలం లోయ చైనా మాచల్ సరిహద్దు చేరుకున్నారు. భారత పరిభ్రమణం పూర్తి చేసి స్వగ్రహం దోబాయ ఫతేపూర్కు చేరుకోనున్నారు. భారతదేశం నుండి తొలి పౌరుడిగా గ్రామంలో పాదయాత్ర ముగింపు చేయబోతున్నారు. ఇప్పటి వరకు 3 సంవత్సరాల 6 నెలల 19 రోజుల పాటు పాదయాత్ర చేసిన అనుభవం తనకుంది. 2009 అక్టోబర్ 7న విద్యను వదిలి దేశహితంలో పనిచేయడం ప్రారంభించారు కిరణ్ కుమార్ సింగ్. ఆ రోజు నుండి ఎటువంటి పదవి లేకపోయినా యువతలో చైతన్యం తీసుకువస్తున్నారు. క్రాంతికారుడు చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ నుండి ఆయన స్ఫూర్తి పొందినట్లు తెలిపారు. అలాగే పేట్రియట్ చీఫ్ ఆఫ్ ఛాంపియన్గా శివకరణ్ సింగ్ ప్రసిద్ధి చెందారు. జల, దళ, వైమానిక సైనికులకు, దేశహిత పత్రికావేత్తలకు తన పాదయాత్ర అంకితమని తెలిపారు. 2022 మార్చి 25న ఫతేపూర్ కరోలి గ్రామం నుండి తన పాదయాత్ర ప్రారంభించారు. मैं 10 किलोमीटर से आपको पीछे कर रहा हूँ मैंने जी। ये आपका मकसद क्या है? अब अकेला पैदल से जा रहा और इसका मकसद क्या है, कहाँ जाए, कहाँ से आए, थोड़ा मेरा प्रेक्षकों को बता सकते क्या? जी जी, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता की। आर्यावर्त की पावन पवित्र भारत भूमि को बारंबार प्रणाम। मैं पहले अपना परिचय दे देता हूँ कि उत्तर प्रदेश प्रांत का फतेहपुर जिला जो पावन वीर बलिदानी गुआबा अमर सुरमाओं की धरती कहलाती है, ग्राम खरौली, ब्लॉक खंडमई, थाना औंग के अंतर्गत ग्राम खरौली से मैं 25 मार्च 2022 को यह राष्ट्रीय सैन्य रक्षक संयुक्त कल्याण पदयात्रा है। जबकि इससे पहले 7 अक्टूबर 2009 में 3 साल 6 महीने 19 दिन की यात्रा कर चुके हैं। और इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि जो आज हमारी जल थल वायु सेनाएं हैं, सीमा से समाज तक जो हमारी तैनात बेल्ट फोर्सेस हैं, ये कोई कागज के पुतले नहीं हैं। ये भी किसी माँ के बेटे, पिता के पुत्र, बहन के भाई, पत्नी के पति हैं। जब ये रातों को जागते हैं तो हम चैन से सोते हैं। जब ये सीमा पर बलिदान होते हैं, शहीद होते हैं, तो हम प्रत्येक दिवस त्यौहार मनाने को पाते हैं। इनके प्रति एक ममता भरी दृष्टि से हर व्यक्ति को दैवीय सुरक्षा शक्ति की 15 मिनट आधे घंटे की कामना करनी चाहिए। और देखिए कि जो जल थल वायु हमारी सेनाएं हैं, इन्हीं की बदौलत आज हम लोग चैन से सुख से समाज में रह रहे हैं। साथ ही
जो नवयुवा भाई हैं हमारे, कि जिन पे आज देश का पूरा भविष्य है, उन नवयुवा का आज सार्वजनिक स्थानों में ऐसे अब युवता के लिए बात कर रहे हैं ना। हाँ जी। युवता आजकल क्या है, क्या कर रहे हैं, वो गांजा गंजाई जी। वो लिख करके पूरे एडिक्ट होके जी। उनको उनका टारगेट छोड़ के हाँ। ये गलती रास्ता में जा रहे जी। हैं। उन लोगों को आप क्या संदेश दे सकते? देखिए, वही बात है कि हर माता पिता अपने बच्चे को छोटे से पालता है कि बेटा माता पिता के काम आएगा, समाज के काम आएगा, इस राष्ट्र के काम आएगा। आज वही नवयुवा सार्वजनिक स्थानों में नशे में घिरा दिखाई देता है, तरह तरह के क्राइम पे पकड़ा जाता दिखाई देता है। तो नवयुवा भाइयों को ये सोचना चाहिए, कहीं न कहीं ये आवाज़ तो मैं उस शासन सत्ता को भी लगाऊंगा कि ऐसा विकास को धिक्कार है, ऐसे विकास को बार बार धिक्कार है कि जो नवयुवा को जहर में घोलकर, जो नवयुवाओं को ग्रस्त में लगाकर इस देश का विकास चलाया जा रहा है। अरे नवयुवा जिस समय खोखला होता जा रहा है तो कहाँ से हमारा ये भारतवर्ष महान बनेगा। नवयुवा इस्कॉन करने के लिए इस नशे को पूरे तरीके से बैन कर देना चाहिए, क्योंकि साथ ही साथ जब नवयुवा नशे से निकल जाएगा तो भारत यही एक देश नहीं, पूरे विश्व में इसका सामना कोई नहीं कर पाएगा। सबसे पहले नशा बंद हो, क्योंकि इससे कई माता पिता परेशान हैं, कई परिवार बिगड़ चुके हैं, कई घर टूट गए हैं, कई इसमें यहाँ तक आत्महत्याएं हो गई हैं। तो नशे को ज़्यादा से जल्द हो सके तो बंद कर देना चाहिए। साथ ही देखिए, हम लोग जो है अपनी तरफ से क्या चल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इस यात्रा में जहाँ भी पहुँच रहे हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो बलिदानी हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो सैनिक हैं, जो समाज से सीमा तक बलिदान हुए, जो शहीद हुए, उनके नाम पर प्रत्येक देवालय, शिवालय, कार्यालय, मुख्यालय में जो नीम, पीपल, बरगद, आम, औला, चंदन, तुलसी, समी, बेलपत्र जो जीवन उपयोगी पौधे हैं, उनके नाम पर श्रद्धांजलि लगाते हुए बराबर आपके 7 अक्टूबर 2009 से ये कार्य चल रहा और अभी 25 मार्च 2022 से चल रहा। यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की नीलम घाटी जो चाइना मचल बॉर्डर है, वहाँ पहुंचकर भी तिरंगा महाशक्ति ध्वजा चढ़ाया। ये राष्ट्र का कीर्तिमान तिरंगा, सर्वशक्तिमान महाशक्ति ध्वज बराबर साथ में चला हुआ है। साथ ही वहाँ से सैनिकों की सुरक्षा सलामती प्रार्थना कर आपके जम्मू, पंजाब, दिल्ली, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, आंध्रा होते हुए तमिलनाडु की कन्याकुमारी में पहुँचे 27 अक्टूबर 2024 को। और इस यात्रा से पुनः वापस फिर तमिलनाडु से होते हुए कर्नाटक, बेंगलोर, कैमूर, आंध्रा से निकलते हुए इस समय आपके जगचैला में पहुँचे हुए हैं, जो ये अपना तेलंगाना का स्टेट है। अभी आप इतना 17 स्टेट तक घूमे अभी तक आपने? जी, 17 स्टेट में कौन सा स्टेट में कौन सा चीज़ पसंद है? अभी आप तेलंगाना में चल रहे, तेलंगाना हासिल करके ये 11 साल चल रहा। जी जी। ओके, आपको इसके पहले कभी तेलंगाना आया नहीं आया तब तेलंगाना कैसा लग रहा आपको? भाई साहब देखिए, तेलंगाना में मेरा प्रथम बार आना हुआ है और बाकी यहाँ की जो भाषा है वो आंध्रा से मिली हुई तेलुगु भाषा है। साथ ही यहाँ हिंदी भाषी लोग भी मिल रहे हैं। इनका रिस्पेक्ट, इनका सहयोग बहुत सराहनीय है। मैं एक बात तो ये भी कहना चाहूँगा कि तेलंगाना किसी के बल पे नहीं है, तेलंगाना किसी के सहयोग पे नहीं है। तेलंगाना अपने आप में वो स्टेट है, कहते हैं ना कि जैसे टॉस किया जाता है, टॉस हेड आए या टेल, बैटिंग तो तेलंगाना ही करेगा। यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों के जो संस्कार हैं बहुत रिस्पेक्टेड हैं और यहाँ कदम कदम पर मुझे सहयोग मिला। साथ ही मैं आपको ये भी बताएं कि मेरे पास में बैग था, जो बैग में लेकर चल रहा था, परंतु इस समय हमारे जो माँ भारती की मातृभूमि के सेवक हैं, उन्होंने हमारा बैग भी ले लिया। बोले हम आपकी हेल्प करते हैं, जितना हो सकेगा हम अपने स्टेट में आपकी सहायता करेंगे। साथ ही देखिए, जो हमारे बुजुर्ग हैं
उनके आदर्शों पे हमें चलना चाहिए। जो हमारी भारतीय सभ्यता है उसका पालन करना चाहिए, जो विदेशी संस्कृति है उसको उसी तरीके से दूर कर देना चाहिए। ये इसमें उद्देश्य हैं। और कोई अभी तक 50,000 से ज़्यादा पौधे लग चुके हैं पूरे भारत में, और यहाँ तक आते आते आपका 19,000 किलोमीटर 87+ किलोमीटर हो चुका है। अभी अब 19,000 का पाद यात्रा चले हो जी। इसमें हर राष्ट्र में हर एक तरफ जर्नलिस्ट आप तो मिलते हो, रिपोर्टर हो। जी, जी। तो रिपोर्टर को आप कौन सा नज़र पे देखते हैं? अगर रिपोर्टर आपको पूछने का है तो आपको मन में क्या लगता है? देखिए आप, ये वो अहम बात भाई साहब ने लेके आई है कि जो रिपोर्टर है, जो हमारा जर्नलिस्ट है, जो हमारा RNI रजिस्ट्रेशन धारक पत्रकार है, क्योंकि पत्रकार भी कई प्रकार के हैं भाई जी। ओके। पत्रकार कई प्रकार के हैं। कोई समाज को शोषण करता है तो कोई समाज के लिए खड़ा होता है। जो समाज के लिए खड़ा है, जो राष्ट्रहित में पत्रकार खड़ा है, जो सोशल के लिए वर्क करता है और वो रजिस्ट्रेशन RNI धारक है, तो उस पत्रकार का सहयोग करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और उसके साथ बर्बरता दरिंदगी अगर कहीं हो रही हो तो उसका सहयोग कर उसको वहाँ से निकालें, बचाएं, क्योंकि पत्रकार की सुरक्षा ही समाज की सुरक्षा है। और पत्रकारों के साथ बर्बरता को कदापि नहीं होनी चाहिए। देखिए आज जैसे मैं चल रहा हूँ, ये नंगे पैरों चल रहा हूँ। 7 अक्टूबर 2009 से पदयात्रा मेरी चली पहली, और ये दूसरी चल रही 25 मार्च 2022 से। तो इसमें आज आवाज़ उठाई है तो पत्रकार बंधुओं ने उठाई है। हर एक निचले स्तर ग्रामीण का रहने वाला पत्रकार जाड़ा में, गर्मी में, वर्षा में जागता है। यहाँ तक कई बार वो खाना खाते हुए भी कवरेज के लिए छोड़ देता है, फील्ड में वर्क को निकल जाता है। जब वो कवरेज करता है तभी जाकर कहीं नेशनल चैनल लहराते हैं। नहीं, नेशनल चैनलों पे तो मैंने अक्सर यही देखा है, वहाँ केवल ये देखने को मिलेगा नेताजी किस बाथरूम में नहा रहे हैं, नेताजी कौन सा शैम्पू लगा रहे हैं, किस कलर का टॉवेल ले रखा है, बाकी यही सब बातें। बाकी पत्रकार वो है जो ग्रामीण स्तर से एक राष्ट्र हित की आवाज़ को लेकर उच्च स्तर में पहुंचाता है और उसको पूरा ऑल वर्ल्ड देखता है उस भाषा के मुताबिक। और मेरा यही कहना कि पत्रकारों का सम्मान करें, पत्रकारों का शोषण बंद किया जाए, पत्रकार को स्वतंत्र रूप से कलम चलाने दिया जाए, क्योंकि पत्रकार कोई आज का नहीं है। पत्रकार वो परंपरा है कि सनातन सभ्यता में देखते हुए पत्रकारिता का दर्जा हमारे श्री महामुनि नारद जी को दिया जाता है। नारद मुनि देव की सभा में निस्वार्थ रूप से जाते थे, वैसे असुरों की सभा में जाते थे, उनकी कोई रोक टोक नहीं थी। पत्रकार कहीं भी जा सकता है, पत्रकार कहीं भी बात ले सकता है, पत्रकार कोई भी मुद्दे को राष्ट्रहित की आगे खड़ा कर सकता है। यही पत्रकारिता के प्रति हर व्यक्ति को जागरूक हो, और सबसे ज़्यादा तो ध्यान यही है बारंबार कि नवयुवा को संभाला जाए, इस जहर को बंद किया जाए जिससे घर बिगड़ रहे, घर कुक रहे, कई आत्महत्याएं हो रही, यहाँ तक कि एक हाई एजुकेटेड पढ़ा हुआ स्टूडेंट वो भी नशे में घिरकर कहीं न कहीं सुसाइड कर रहा है। सार्वजनिक स्थान में लुढ़कता मिल रहा है। तो इनको बंद कर सैनिकों का सीमा से समाज तक जो हमारी बेल्ट फोर्सेस हैं इनका भी सम्मान करें, साथ ही माता पिता का आज्ञा पे चलें। यही मेरा एक वंशनिष्ठ है कि लोग जागरूक बने और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से परिचय करवाएं। अब यहाँ से आपके हम हैदराबाद MP होते हुए प्रयागराज फतेहपुर जनपद का जो ग्राम खरौली है, थाना औंग के अंतर्गत इस यात्रा का समापन होगा। कोई ये पूरी यात्रा जो है तो उनकी 2000 किलोमीटर के बराबर है। और एक छोटा बात फाइनल में जी। हर अभी भारत देश में मुफ्त स्कीम्स चल रहा है जी। मुफ्त कहीं जाओ। एक ज़माने पे पॉलिटिकल पार्टी कैसे रहते, जी। पिछले गए सो टाइम पे कौन सा अच्छा काम किए
उसका जो फल मिल रहा वो सबको दिखाते थे। आजकल क्या हो रहा, वो दिखाना छोड़ के फ्री 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 बता रहा। अभी दिल्ली इलेक्शन में फ्री का स्कीम चल रहा, वो फ्री का स्कीम का वास्ते अभी बीजेपी भी फ्री का ट्रैप पे है गए। अब ये फ्री का ये स्कीम्स जो है उसको काटने के लिए, अगर वो बंद रखने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, युवता के लिए एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए आप कुछ मैसेज देना पड़ता है क्या? देखिए, किसान हल चलाता है, घास बीनता है, बीज डालता है, पानी लगाता है, तभी जाकर फसल होती है ना। एक छोटा सा बच्चा कॉलेज में जाता है, पहले वो 1 2 3 या का खा ABCD सीखता है ना, उसके बाद जाके रिजल्ट में आगे जाके बड़े बड़े क्लासों में जाके पास होता है, तब जाके उसका रिजल्ट निकलता है। अगर उसको बिना पढ़ाई किए, बिना संघर्ष किए सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा तो बताइए भविष्य कहाँ जाएगा? अंधेरे के सिवा क्या उजाले में आएगा क्या? परिश्रम बहुत जरूरी है, संघर्ष बहुत जरूरी है। अगर किसी को फ्री में दिया जा रहा है तो उसको आलसी बनाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आवाज ये है कि मंदिर मस्जिद नेता घूमेगा, झूठे वादे कस्में तोड़ेगा, पैसा लेकर वोट बिकेगी, बाद में जनता सर पकड़ेगी, विकास नौकरी का देगा। देखो भैया कलयुग मेला, देखो भैया कलयुग मेला, क्योंकि ये एक कलिकाल का मेला है। इस मेले से बचो, संघर्ष में आगे बढ़ो, बुराइयों को पीछे छोड़ो और प्रगति की ओर आगे आए, सत्यता की आंखें खोले, राष्ट्र हित में खड़े हों, यही मेरा एक कहना है। ओके, अभी शशिकिरण सिंह जो बोला वो सही है। अगर नेता हो फ्री स्कीम्स छोड़ो, आप देश भलाई के लिए, राष्ट्र भलाई के लिए, युवता भलाई के लिए काम करो। आप नैपुण्य विकास के लिए काम करना पड़ेगा। जो मुफ्त स्कीम देके जो युवता है वो मुफ्त में फंस कर उसका जो काम सीखने है वो नहीं सीख पा रहे। अगर भारत देश में अभी नौजवान मतलब 20 साल से 45 साल के उम्र ज़्यादा है, अगर 10-15 साल गए तो पूरा बुढ़ा लोग ही मिलते भारत देश में। उसके ऊपर भी गवर्नमेंट आंखों लगाना है। वो तब अपन अभी भारत देश के व्यक्तित्व विकास के ऊपर, ऐसे ही मादक द्रव्य के ऊपर गवर्नमेंट फोकस जरूर लगाना। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, जो सैनिकों हैं, जो सैनिकों बॉर्डर में लड़ रहे, अपने लिए लड़ रहे, ओके, अपन यहाँ पे पी के खा के आराम से अपना टाइम बर्बाद कर रहे। भाई यहाँ तो ऐसा भी है, देखिए मैं देखता हूँ कि एक क्राइम किया हुआ व्यक्ति प्रशासन के हाथ में आता है और प्रशासन उसको प्रताड़ित कर उसको सही रास्ता देना चाहता है, मगर वहाँ भी पीछे से क्या होता है कि बड़े से बड़ा कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति फोन लगाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं समाज को बहुत धूमिल कर रही हैं, क्राइम को बढ़ावा दे रही हैं। अगर नौयुवा को नशे में धकेल दिया गया, उसका कलेजा डैमेज कर दिया गया, हम कहेंगे भारत बलवान बनेगा, भारत बुद्धिमान बनेगा। कैसे बुद्धिमान बनेगा जी? हर माता पिता दुखी होता जा रहा है, ये नशा दिन का दिन बर्बाद चला जा रहा है। ऐसा विकास नहीं चाहिए। विकास वो है कि जब नशे से मुक्त हो, नौयुवा स्ट्रॉन्ग हो, तब जाके भारत महान बनेगा हमारा, ऐसे नहीं होगा। ఉత్తరప్రదేశ్ చెందిన శశికిరణ్ సింగ్ గత 3 సంవత్సరాలుగా పాదయాత్ర చేస్తున్నారు. చైనా లోయలో నుంచి కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు సుమారు 20,000 పైచీలకు కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేశారు. ఈ పాదయాత్ర ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే భారతదేశం యొక్క సార్వభౌమాధికారాన్ని చాటి చెప్పడం, అలాగే సంస్కృతి సాంప్రదాయాల గురించి వెలుగెత్తి చాటి చెప్పడం, ఉద్యోగాలు చేస్తున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, ఆర్మీ జవాన్లు, BSF, తర్వాత నాయకులు, తర్వాత ప్రభుత్వ అధికారులు, తర్వాత పత్రికారులు అంటే జర్నలిస్టులు ఎవరైతే నిస్వార్థంగా దేశ కోసం పోరాడుతున్నారో వాళ్ళందరి మంచి కోసము తను ఎంతో మంచి ఉద్దేశంతోనే ఈ పాదయాత్ర మొదలుపెట్టారు. ఈ పాదయాత్రని ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్, మధ్యప్రదేశ్ నుంచి ప్రయాగ్రాజ్కి వెళ్ళి తన సొంతూరులో పాదయాత్ర ముగిస్తా అంటున్నారు. గత 3.5 సంవత్సరాలుగా అలుపెరగని పోరాట యోధునిలాగా పోరాడుతున్నాడు. అతని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రభుత్వాలు ఉచిత స్కీమ్స్ వదిలేయాలి, యువతలో నైపుణ్యం పెంచాలి, అలాగే ఎవరైనా నిస్వార్థంగా పనిచేయాలి. తర్వాత ప్రభుత్వాలు నాయకుల వెంట పడిపోకుండా, నాయకుల ట్రాప్లో పడిపోకుండా అందరూ ఏకతాటిపైకి వచ్చి
మనకు ఏమి కావాలో అది సాధించుకోవాలి. ఉచితాలకు అలవాటు పడి యువత తమ జీవితాలు నాశనం చేసుకోవద్దని, అలాగే పంట పండించే రైతుకు ప్రభుత్వాలు చేయూతనిచ్చి పైకి తీసుకురావాలని. ఎందుకోసం అంటే తినేవాళ్ళు పెరుగుతూ ఉన్నారు, పండించే వాళ్ళు తగ్గుతూ ఉన్నారు. రియల్ ఎస్టేట్ ట్రాప్లో మొత్తం భూములు సర్వనాశనం అయిపోతున్నాయి. కార్పొరేట్ వ్యవస్థ వ్యవసాయాన్ని కబలించి వేసింది కనుక రాబోయే తరాలకు తిండి గింజ దొరకని పరిస్థితులు ఏర్పడకుండా ఉండాలంటే ప్రభుత్వాలు ఇప్పటి నుంచే దురదృష్టి ఆలోచించాలని మన శశికిరణ్ సింగ్ చెప్తున్నారు. అలాగే తన మిగతా పాదయాత్ర కూడా విజయవంతం కావాలని, అడుగడుగునా వాళ్ళకి అన్ని సహాయక సహకారాలు అందించే యువకులు ముందుకొస్తారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. జై హింద్.